Okay, beta ji, the screen is already sharing. So I have written the key points on a flashcard and I'm displaying it in the background. I've already shared it in your group, so you don't need to worry. And the poem we are going to do today is an elementary school classroom in Islam. It is written by Stephen Spender. Now, this poem is based on the mining town of Wales. And during the First World War and the Second World War, there was a lot of mining done in and around the Wales. But after the mines had been depleted, मैम आप the miners left the town. हाँ जी बेटा जी, मैम आपकी आवाज नहीं सही आ रही। मेरी आवाज सबको सही नहीं आ रही कि चेह को सही नहीं आ रही? यस मैम, सही नहीं आ रही। Yes, It's echoing. What should I do? मैम दबी दबी सी आ रही है, जैसे मतलब बहुत पास है या तो फोन ऐसे लग रहा है या बहुत स्लो है। Um, ठीक है बेटा, मैं ईयर प्लग्स निकालती हूँ and then let's see if the quality improves. Just a minute. हाँ जी बेटा जी, now is my voice better? यस मैम, यस मैम। बहुत अच्छी आ रही Okay, so basically I was using the earplugs, due to which maybe there was an echoing effect. They were quite close to my mouth. But if this much sound is audible, then इससे ज़्यादा ऊंचे नहीं मैं बोल पाऊंगी. So, okay. So, elementary school classroom in Islam is based on a mining town of Wales. During the First and the Second World War, a lot of iron mining was done in and around Wales. But after the ore had been depleted, the wars had ended. The rich miners left without a single thought to the laborers, to the families of the children, to the families of the miners, not caring about the children. They just left. They just went away. So Stephen Spender believes in equality in the society. The theme of this poem is equality and social injustice. He says that social injustice should be removed so that everyone can be equal. And looking at this elementary school, he is very, very sympathetic. He is very, very worried about these children, and hence he writes this poem. So basically, this poem is divided into four stanzas. Can anyone tell me what is the subject matter of the first stanza? Hanji beta ji, can you tell me what is the subject matter of the first stanza? No one? है। मैम ये जो आपने लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। हाँ एग्जैक्टली बेटा जी, तभी तो ये आपको बना के दिया है, so that you have at your fingertips whatever is required. The first stanza is about the description of the children in the classroom. The first two lines give a general description, and after that we have, a specific description of four children in the class. Right? You have to remember the magic word four in this poem, because he gives four examples of each and everything. So, first, the general description that he gives is far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn around their palate. Now, this is a general description. What does it mean by far, far? फार फार का मतलब क्या होता है? मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि brightness. ब्राइटनेस मिसिंग है। ब्राइटनेस मिसिंग है बेटा, गस्टी वेव्स ब्राइटनेस है. फार फार Very far. indicates the emphasis on how far the children away are from energy, how far they are away from the enthusiasm of the waves. It in you know it
It is referring to the fact that the children have no energy whatsoever in their faces, in their lives. Which literary device has been used here? Far, far from Alliteration. gusty waves. Alliteration. Alliteration कहाँ आया बच्चे? Images and symbols. No, Chehek, not at all. Reputation. Waves में Yes, very good. It's repetition. Beta, the word far is repeated twice. It is repeated for emphasizing, the distance between the children and the energy. When a word is repeated for emphasis, only then it is repetition. Otherwise, हम हर चीज को repetition नहीं बोल सकते. So far, far from gusty waves, the literary device is repetition. It is emphasizing that there is absolutely no energy in the children. All the children in the classroom, they are lacking in energy. And then he further calls them like rootless weeds. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds. Rootless का मतलब क्या होता है? अगर हम बच्चों के ऊपर अप्लाई करें तो what does rootless जिनकी mean? पहचान नहीं होती. यस, रूटलेस होता है जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, हु आर मे बी ऑर्फन्स, उनके पेरेंट्स नहीं है. इट इज आवर पेरेंट्स हु गिव अस रूट्स, है ना? हम हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं. सो आवर पेरेंट्स आर आवर रूट्स. एंड हाउ डू यू डिफाइन वीड्स? Unwanted plants. unwanted. Plants. Yes, they are unwanted plants. So these children are like rootless weeds, implying that they are unwanted orphans, right? And the hair torn around their pallor. Pallor का मतलब क्या होता है? Pale. Pale face. Very good. Pale face किसका होता है? हेल्दी बच्चों का कि अनहेल्दी बच्चों का? Unhealthy. 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 जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मा आपके बालों का ध्यान रखते थे, और would she allow you to roam around in dirty hair? ध्यान रखते थे. ध्यान है ना? रखते She थे. would oil your ध्यान hair, रख. she would comb your hair. But do these children have anyone to care about them? No. 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 So that is what is implied here. The hair torn around their pallor. That is, they have scattered hair around their pale faces. This is the general description of all the children. You can see at a glance that no one cares for them. After that, he starts with description of four specific children. The first child he mentions is the tall girl with her weighed down head. There is a girl who is the tallest in the classroom and her head is weighed down. Question immediately arises, why is her head weighed down? What is implied by the tall girl? Sadness. Burden of life. बेटा सैडनेस तो बहुत ऑब्वियसली यस इट इज देयर, बट अगर सर झुका हुआ है तो वो सैडनेस से होगा और ड्यू टू बर्डन्स ऑफ लाइफ? Burdens of life. Very good. And second reason is, you are not taking into account the word tall. What does the word tall indicate? मतलब वो Ovary. अगर सबसे एक बड़ी है उम्र में. Five. Over एक age. थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है, हाँ जी बेटा, अगर एक थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है और एक नाइन्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो उनके फिजिक में, उनकी हाइट में कुछ फर्क होगा? Yes, ma'am. राइट. अगर उनके हाइट में फर्क होगा, तो अगर हम नाइन्थ वाले बच्चे को थर्ड वाले बच्चे के क्लासरूम में बिठाएंगे तो वो खुश होएगा कि मैं क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, और विल ही बी अशेम्ड? Ashamed. Ashamed. है ना? So the tall girl implies that maybe she is the eldest girl in the classroom, and because of that she is ashamed, and she is probably, her head is bowed down because of her feelings of embarrassment. Again, it could also be that her head is bowed down because of the burden of poverty stricken life. So that is the first child that has been mentioned. The second child is the paper seeming boy with rat's eyes. A paper seeming boy. इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? Metaphor. Metaphor.
Yes, the boy who is as thin as paper. अगर हम ऐसे बोलते तो ये simile हो जाता. The paper simming boy is a similarly Okay, I'll simplify it. He has eyes just like a rat. And now I'm saying he has rat's eyes. Metaphor. Yes, Metaphor. again, it's a metaphor. Comparison without the words as in like. It's an implied, it's an implied comparison. अच्छा अब चूहे की आंखों में confidence है कि डर है. Ma'am, Time your and voice is how do you breaking. visualize the rat? Yes, I can see the network is not working. What should I do? Wait a minute. One second. Wait a minute. Beta ji, is my voice audible now? Yes, ma'am. Okay. Hanji beta ji, when you think about a rat, how do you visualize it? You know, if it enters a house, will it look confidently into our eyes? Or will it run away? Run Run, away. Why will it run away? डर Why will जाता it run? हाँ जी. वो डर जाता है हमें देख के. हाँ बिल्कुल. चूहे की आंखों में कॉन्फिडेंस है कि डर है. डर. Dead. अब इस बच्चे को हम कह रहे हैं कि इसकी रैट की आईज हैं, तो इसके आंखों में कॉन्फिडेंस है कि डर है. Dar. Dead. वेरी गुड. अच्छा, चूहे की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, चाहे उसको ऑल द टाइम ही इज नॉइंग अवे एट थिंग्स, वो चीज़ों को काटता रहता है. कैन वी इम्प्लाई फ्रॉम दिस दैट द रैट इज ऑलवेज हंग्री? Yes, ma'am. Yes. So, can we liken these two characteristics to the paper seeming boy, the boy who is as thin as paper? Yes, ma'am. Thin as paper implies that he is undernourished, he is perpetually hungry. So, again, the comparison with paper uh, as per his physique, and the comparison to the rat's eyes because hunger is reflected in his eyes all the time. Moreover, fear is also continuously there in his eyes. ये जो बच्चे हैं एलिमेंट्री स्कूल के, द स्कूल इन द स्लम, दे आर ऑलवेज fearful. दे आर नॉट कॉन्फिडेंट लाइक यू एंड मी. वो हमेशा दुनिया से डरते हैं. उनको डर होता है कोई हमें कुछ कह ना दे, अब हम क्या करेंगे अगर ऐसा हो जाए. उनको 24 घंटे ये डर सताता है, और इस पतले से बच्चे में भी उसकी आंखों में ये डर रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो दैट इज द सेकेंड चाइल्ड. The third child is the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. Right? अब इसका मतलब क्या हुआ? The stunted, unlucky heir. Stunted का मतलब क्या होता है? Twisted bones. स्टंटेड का मतलब है जिसकी ग्रोथ रुक गई है, अरेस्ट हो गई है, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा है, उसमें बहुत न्यूट्रिशन की कमी है, जिसके कारण उसकी हड्डियों की डेवलपमेंट, उसकी बोन्स की डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो रही है. राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टंटेड. व्हाई इज ही कॉल्ड एन अनलकी हेयर? क्योंकि उसने वो अपने फादर से इनहेरिट किया. Because वेरी he गुड. inherited disease यस. from his father of हेयर twisted का bones. मतलब होता है वारिस. वारिस का मतलब होता है जब हम वसीयत में अपने पेरेंट्स से रिचेस, वेल्थ, प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं.
बट ये बच्चा इनहेरिटर तो है, बट ये बड़ा अनलकी इनहेरिटर है क्योंकि इसने जायदाद इनहेरिट नहीं की है, उसने अपने पापा की बीमारी, कौन सी बीमारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उस बीमारी को इनहेरिट किया है. ट्विस्टेड बोन्स जनरली is a reason of chronic undernutrition, malnutrition, right? And this disease is known as the gnarled disease. gnarled का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी. जब कोई ट्री होता है उसके ब्रांचेस बड़े टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, पुराना हो जाता है, वी कॉल इट अ gnarled ट्री. उसी से ये बीमारी आई है, द gnarled डिजीज ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसमें सारी ट्री की तरह सारी हड्डियां मुड़ जाती हैं, right? The stunted, unlucky heir of twisted bones reciting a father's gnarled disease. Reciting word में कौन सा literary device है? Reciting word में कौन सा literary? हाँ जी. Pun. Very good. Why is it? What is a pun, beta ji? Beta ji, what is a pun? जिसमें एक वर्ड के दो दो मतलब बने. Yes, a word is capable of more than one meaning. Right over here, the meaning which is clearly visible is reciting. That is, he is reciting his lesson from his desk. वो अपने डेस्क पे खड़ा होके जो भी उसको टीचर ने लेसन असाइन किया है उसको रिसाइट कर रहा है. At the same time, when he is standing at his desk, he is also reciting. Over here, reciting means showing, दिखाना. वो अपनी बॉडी में, अपनी अंडर नरिश बॉडी में, स्टंटेड ग्रोथ में अपने पापा की बीमारी को दिखा रहा है. So therefore, we say that there is a pun over here, reciting his lesson and showing his father's inherited disease in his body when when he's standing at his desk. This is the third child. Now the fourth child is sitting at the back of the dim class. Dim class क्या imply करता है? बेटे स्टीफन स्पेंडर इज अ वंडरफुल पोएट. उसने ना एक एक वर्ड में, अगर आप इसको बारीकी से क्रिटिकली एनालाइज करो, ईच एंड एवरी वर्ड इज रिफरिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. What is the meaning of dim class? Unnoticed. Dim, unnoticed. Okay, dim means it is क्लास में not. कोई लाइट नहीं है. Yes, it Darkness. is not light. अगर हम लिटरली अगर इसकी बात करें, लिटरल मीनिंग का मतलब होता है जो एक्चुअल मीनिंग हमें एट अ ग्लांस समझ में आता है. इसका मतलब है कि स्कूल is in a slum area. It is possible that it doesn't have many light fixtures. Secondly, it is possible क्योंकि स्लम एरिया में है तो विंडोज डर्टी होंगी, तो ऑब्वियसली बाहर की सनलाइट आ नहीं रही होगी क्लास में. And as we read further in the chapter, we realize that the tall buildings are blocking out the sunlight. तो उनके पास sunlight भी नहीं पहुंच रही है basically in the slum area. This is the literal meaning. Literal meaning means something which is visible at glance. What is the figurative meaning of the word dim over here? Bete, it means a class which doesn't offer much hope for this young boy. बाकी के तीन बच्चे दिखा रहे हैं that the lack of opportunities in their life. बट ये जो बच्चा है जो पीछे बैठा हुआ है डिम क्लास में, उस मतलब उसकी आंखों में सपने हैं, बट द क्लास इज शोइंग अस, द डिम क्लास इज शोइंग अस, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि जितने मर्जी ये सपने देख ले, बट दे आर नेवर एक्चुअली गोइंग टू मटीरियलाइज. उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे. देर आर वेरी वेरी डिम चांसेस कि वो अपनी लाइफ को कुछ अच्छा बना सके, अपने सपनों को पूरा कर सके. So that is the figurative meaning of the word dim class. Any questions still here?
No, ma'am. No, ma'am. रूम दिन क्लास में जाके, उस दिन क्लास के आखिर में जाके एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है. ही इज एन अननोटेड चाइल्ड. अननोटेड चाइल्ड मतलब जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है, वो इतने अंधेरे में बैठा हुआ है. हिज आईज लिव इन अ ड्रीम. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस चाइल्ड एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास. उसकी आंखों में अभी भी सपने हैं, जबकि दूसरे बच्चों की आंखों में सपने मर चुके हैं. His eyes live in a dream. और उसकी आंख जो सपना है, वो किस चीज का सपना है? What is implied by of squirrel's game? freedom, Yes, running around freely in nature. Squirrel घर के अंदर भागता है, नो prison मैम. के अंदर भागता है? No, no, it is always running around in nature. कभी वो पेड़ों पे चढ़ रहा होता है, कभी जमीन पे भाग रहा होता है, but it is out in nature. वैसे ही ये बच्चा भी नेचर एंजॉय करना चाहता है, right? One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game. In tree room other than this. Tree room other than this, what does this imply? बेटा ट्री रूम क्या होता है? I'm seeing a hole. Yes, a hole in a tree which often becomes home of the squirrel. That is the place where the squirrel puts away all his accumulated food. वो जितना भी फूड कलेक्ट करता है वो उस होल में जाके रख देता है. इट्स अ ट्री रूम. अभी स्क्विरल ने अपने होम में अपना खाना इकट्ठा किया है, सो ही विल हैव अरेंज्ड इट अकॉर्डिंग टू हिज कंफर्ट, अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस. उसने जो सामान अपने रूम में रखा होगा, उसमें जो रूम में जो मर्जी चलती होगी, वो स्क्विरल की होगी कि किसी की होगी? मैम उसी की होगी. स्क्विरल की होगी ना. अब क्लासरूम में इस छोटे बच्चे की मर्जी है? No. नहीं. Do you understand the way the poet has compared that his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this? This over here implies the slum classroom. वो स्लम क्लासरूम को छोड़ के, चाहे वो छोटा सा ही कमरा है, but a room where he is free to do whatever he wants to do. That is the implication. Do you understand this now? यस मैम. क्लियर हो गया सबको बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम. Okay. Just give me 1 minute. 1 second. हाँ जी. So with this we start with the second stanza. What is the second stanza all about? Description of classroom, word of the children. Yes, description of the classroom and in reality the actual world of the children. बच्चों की दुनिया क्लासरूम जैसा शो कर रहा है, क्या वैसी है या नहीं है? क्लासरूम की तरह बच्चों की दुनिया है? Okay, let us talk about what things are there in the classroom. How are the walls? Sour cream balls. जी बेटा जी, it's sour. Sour cream walls. Sour का मतलब क्या होता है? खट्टा. खट्टा. वेल पेंटेड. जब हम किसी चीज को सावर का डिस्क्रिप्शन देते हैं, खाने की चीज को नहीं बट किसी और चीज को, इट implies that it is completely unappetizing.
है ना, उस वो आंखों को भारी नहीं है, आंखों को घृणा आती है उस चीज को देखकर. सो ऑन sour cream walls implies that the walls are not at all good to look at. Moreover, full of donations on sour cream walls. Donations. Donations का यहाँ पे मतलब it is implying two things. It is not a pun, but it is implying two things. One, that the room is filled with things which have been donated by people. स्कूल के पास अपने इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कुछ भी अच्छी चीजें स्कूल के लिए ले, तो लोगों ने डोनेट की हुई हैं. एंड प्रोबेबली ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, प्रोबेबली दैट द पीपल हु हैव डोनेटेड थिंग्स, उनके नाम भी शायद लिखे हुए हैं. So that is why they are calling it on sour cream walls donations. Now, what are the donated things? There is Shakespeare's head. Some books say that it is a painting of Shakespeare. I personally believe that it is a bust of Shakespeare, a head and shoulders bust. Shoulder bust होता है, it's kind of a statue. Shoulder length statue जो होता है उसको bust बोलते हैं. और क्लासरूम में शायद शेक्सपियर का हेड है, बस्ट है या फिर पेंटिंग है. What is implied by Shakespeare? When we think of Shakespeare, हमारे दिमाग में क्या आता है? नॉलेज. ओके, शेक्सपियर नॉलेज तो नहीं बचे, नॉलेज से ज्यादा और क्या? नॉलेज इज अ वेग टर्म व्हेन कंपेयर्ड टू शेक्सपियर. मैम लिटरेचर. हाँ जी. मैम लिटरेचर. मैम लिटरेचर बेटा बोला. क्या बोल रहे हो? लिटरेचर नहीं बच्चे, लिटरेचर नहीं, इट्स एरुडिशन. ERUDITION. एरुडिशन का मतलब होता है a very very stylish way of saying things. It implies formality. हाँ जी. हाँ जी बेटा. बेटे जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो शेक्सपियर ने आज तक जितने भी वर्क्स लिखे हैं, जितने भी ड्रामास या पोएम्स या कुछ भी लिखा है, he has always taken up the life of a royal person, the life of the nobility of England, right? उसके कहानियों में पुअर पीपल के लिए कोई जगह नहीं है. Charles Dickens always wrote about orphan children, about the poor segment of society. On the other hand, Shakespeare has always written about the noble people of England, the rich people of England, the nobility, the aristocratic class के बारे में उन्होंने लिखा है. तो जब हम शेक्सपियर के बस्ट को देखते होंगे बच्चे, तो उनको एक रिच दुनिया नजर आती होगी. यस. है ना? अब ये बातें याद रखनी है कि शेक्सपियर क्या इम्प्लाई करता है, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द थर्ड स्टैंजा, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम शेक्सपियर्स हेड, व्हाट एल्स इज देयर इन द रूम? क्लाउडलेस सिविलाइज्ड वर्ल्ड्स, इसका मतलब पहली हाँ जी. पिक्चर ऑफ वैली. Yes, it's a picture which is showing the scene dawn. Dawn का मतलब होता है early. It is because it is early morning. There are no clouds in the sky. It is cloudless, and a civilized dome riding all cities. सिविलाइज्ड डोम का मतलब सिविलाइज्ड डोम का मतलब बेटा जी, सिविलाइजेशन क्या होता है? जंगलों में सिविलाइजेशन होता है? नो मैम. हमारा इंडिया सिविलाइज्ड है? चुप कर गए, है या नहीं है पता नहीं है. वी आर सिविलाइज्ड और नॉट? यस. यस मैम. यस मैम. यस, वी आर सिविलाइज्ड. सिविलाइज का मतलब होता है जिनको जीने का तरीका आता है.
हम जंगली नहीं है, हमें जीने का, लोगों से बात करने का, लोगों के साथ इकट्ठे रहने का तरीका आता है. Civilized dome implies education, intellectualism. जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वही सिविलाइज्ड होते हैं, राइट? नाउ दिस painting is referring to civilized dome, a civilized rooftop. Civilized rooftop मतलब high rise buildings which are riding all cities. Riding all cities मतलब beta high buildings which are ruling over the entire city. The entire city, you have to remember, it's a mining town. Mining town है तो इसका मतलब है मतलब if you just if you don't even take the town into account, अगर हम वैसे सिटी की बात करें तो सिटी में सारी बिल्डिंग्स हाई राइज नहीं होती, छोटे छोटे घर होते हैं, राइट? बट जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहां पे ऑब्वियसली रिच लोग रहते होंगे, यस है ना? तो अब ये जो चीज है ये क्या कह रहे हैं कि रिच पुअर को रूल कर रहे हैं कि पुअर रिच को रूल कर रहे हैं? रिच पुअर को कर रहे हैं. The rich are ruling over the poor. And what have they done with their high rise buildings? Have they captured the sun? उन्होंने सन की रेस को नीचे पहुंचने से रोक दिया है, यस Yes. है ना? जब हम अपने आसपास भी देखते हैं, अगर अगर हमारे घर में धूप आ रही होती है और हमारा कोई नेबरिंग हाउस में अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करवा ले, ऊंचा करवा ले, तो doesn't it happen that the sun doesn't come to a house after a certain time? It restricts the sun from coming to a house, Yes, ma'am. है ना? तो this is what is happening. See, the sun implies freedom. The sun implies equality. Sun अपनी warmth देने में कोई भी अनइक्वालिटी नहीं करता है. वो ये सॉरी इनइक्वालिटी नहीं करता है. वो ये नहीं बोलता है कि मैं रिच को वार्मथ दूंगा और पुअर को वार्मथ नहीं दूंगा. वो तो इक्वली हर एक को अपनी वार्मथ देता है. बट हम इंसानों ने, रिच लोगों ने सन की रेस को भी पुअर लोगों तक पहुंचने से रोक दिया है. So again, there is the image, beautiful image of high-rise buildings which are dominating over the entire landscape in a beautiful cloudless sky. पीछे स्काई बिल्कुल क्लाउडलेस है. क्लाउडलेस का मतलब उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी, किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं है. क्लाउडलेस implies, we are talking about dimness, we are talking about fogginess, we are talking about clouds. All these things imply not having good things in our life, not being able to live in a good way. And cloudless will automatically mean the opposite. Yes or no? यस मैम. I am living under a cloud. इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत अंधेरा मतलब बहुत ही दुखी कुछ ऐसा. Yes, I'm living under a cloud का मतलब हो जाएगा that my existence is very, very sad. It has been blighted. It has been troubled by some kind of sorrow. Right? अगर मैं बोल रही हूँ I'm living under a cloudless sky, अब इसका मतलब क्या होगा? कि मैं खुश हूँ. Yes, मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है. So now this painting is there which is showing a cloudless sky. It is showing high-rise buildings which are dominating the entire city. Do you understand the importance of this painting for the slum children? यस मैम. Yes, ma'am. Very good. Now I have told you the number 4, है ना? पहले 4 बच्चों की description दी है specific. Now he is talking about 4 specific things in the classroom. First was Shakespeare's head. Second is the painting of high-rise buildings. The third is the belt flowery Tyrolese Valley. Tyrolese Valley is one of the most beautiful valleys of the world. It is filled with belled flowers. फूल जिनका शेप बेल की तरह होता है, वो वैली पूरी इस तरह के फूलों से भरी हुई है. और उनके क्लास में ऐसे एक वैली की फोटो लगी हुई है. Is it in stark contrast to their neighborhood? Yes, ma'am. है ना? उनका नेबरहुड आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? रिपीट करना. बेटे इन स्लम बच्चों का नेबरहुड आप कैसे डिस्क्राइब करोगे?
उधर कोई फ्लावर्स नहीं होते, उधर गंदगी होती है ना? And it is in direct contrast to the Tyrolese Valley, which is one of the most beautiful valleys of the world. So that is how the poet is creating a distinction between the world of the children and the world outside the slum area. Am I clear? Yes. Yes, ma'am. Okay, so this was the third thing. Now, the last thing that the poet describes is an open handed map awarding the world its world. अब ये ओपन हैंडेड मैप का मतलब क्या है? बेटा जी, ओपन हैंडेड मैप का मतलब क्या है? वर्ल्ड मैप. Yes, it's a world map. It's an open map on the wall. क्लासरूम की वॉल पे खुला मैप ये रखा हुआ है और आगे पोएट बोल रहा है कि ये दुनिया को अपना दुनिया दिखाता है. अवॉर्डिंग मीन्स गिफ्टिंग, it is applauding the world, it is lauding the world with the beautiful world they live in. So awarding the world its world का मतलब होता है दुनिया को दिखाता है कितनी ब्यूटीफुल दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया में वो रह रहे हैं. Right? These are the 4 things in the classroom. Now, with these lines, we go to the world of the children. But बच्चों की दुनिया क्या है? And yet, for these children, these windows not this map their world. ये बहुत important line है. इस line में poet क्या बोल रहा है? हाँ जी बेटा जी, इस line में poet क्या बोल रहा है? And yet, for these children, these windows not this map their world. मैम उनके लिए मतलब लिमिटेड ही है वर्ल्ड. यस, उन उनके लिए तो चिल्ड्रन के लिए वर्ल्ड वही वर्ल्ड है जो उनको उनकी स्लम रूम के क्लासरूम से दिख रहा है, क्लासरूम की खिड़कियों से दिख रहा है, वही उनके लिए वर्ल्ड है. जो मैप में वर्ल्ड दिखा रहे हैं, टायरोलीज वैली दिखा रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं, वो तो उन स्लम एरिया के बच्चों की दुनिया है ही नहीं. उनकी तो दुनिया वही गंदी, डिंजी, डर्टी एरिया है जो उनको अपने विंडो से दिख रहा है. विंडोज उनके ब्राइट एंड क्लीन है कि डर्टी एंड स्मज्ड है? डर्टी एंड स्मच. है. तो दुनिया कैसे नजर आएगी? ब्राइट एंड क्लीन और डर्टी एंड स्मज्ड. Dirty and smudged. Clear? Can you understand the distinction between the two worlds now? Yes. Yes. ma'am. Okay. अब ये कैसी दुनिया है? The poet continues, where all their futures painted with a fog. अब इस लाइन का मतलब? उनका वर्ल्ड डिम है, फोगी है. यस, फॉगी का मतलब क्या होता है? That their Dim. world future is blur. इट्स हेजी, उनको क्लियर Doubtful. नहीं है, बहुत ब्राइट नहीं है, धुंधला है. अंधकार है कि धुंधला है? धुंधला. धुंधला. यस, धुंधला है. अभी अंधकार नहीं छाया है, अंधकार भी छा सकता है, बट अभी धुंधला है. धुंधला है क्या मतलब? शायद एक छोटी सी किरण बाकी है. राइट? बट पोएट बोल रहे हैं कि बेसिकली तो उनकी दुनिया जो है इट इज ऑल पेंटेड विद अ फॉग. एंड व्हाई इट इज पेंटेड विद अ फॉग वो फर्दर इनलाइटन करता है. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, far far from rivers, capes and stars of words. धुंधली क्यों है वो डिस्क्रिप्शन देता है कि उनकी दुनिया जो है वो एक तंग गली है. नैरो स्ट्रीट का मतलब होता है अ स्ट्रीट विच इज वेरी वेरी स्मॉल. देयर इज हार्डली एनी स्पेस टू स्क्वीज थ्रू विदाउट ब्रशिंग इनटू समवन. आप किसी से टकराए बगैर आगे नहीं जा पाओगे, इतनी नैरो स्ट्रीट है. एंड इट इज सील्ड इन का मतलब होता है ऊपर से उसको बंद कर दिया गया है. किसके साथ बंद किया है? लेड स्काई. लेड स्काई इज अ मेटाफर. इट implies a gray sky, a sky without hope, without any future, without any brightness. It's a gray sky. What is the difference between a blue sky and a gray sky? Gray sky is polluted. Very good. It's polluted. What else? डिम. क्लाउडी होता है.
Yes, I was coming to that only. Beta, when you're talking about an elementary school classroom in a slum, you should not go in for polluted. Because nowhere in the chapter they are talking about pollution. It is all grayness over here, all implies full of clouds, full of, lack of brightness. तो pollution पे मत जाना राजा, आप पूरा अपना आंसर खराब कर लोगे. So lead sky, gray sky over here implies a sky which is full of clouds. Again, I've already explained to you. Living under a cloud means that you're not at all happy. You're living under some kind of sorrow. So that is their street where everyone is living under sorrow. And this street is far, far. Again, which literary device is there in the word far, far? Repetition. Repetition. Very good. Repetition. It emphasizes on the distance. Far, far from rivers, capes, and stars of words. Rivers implies nature, capes implies the snow mountains, and stars of words implies, uh, you know, uh, education. 1 minute. I think I've lost my screen share. And stars of words implies education, the beautiful world of knowledge. So in बच्चों की दुनिया कैसी है? इन बच्चों की दुनिया में बेटा नेचर का कोई नामो निशान नहीं है, एजुकेशन का कोई नामो निशान नहीं है. आपके जो एमसीक्यूज आएंगे वो इसी पॉइंट पे आएंगे, वो इसी पॉइंट से रिलेटेड आएंगे. बाउंटीज ऑफ नेचर. बाउंटीज का मतलब होता है द अनलिमिटेड गिफ्ट्स ऑफ नेचर. बाउंटीज होता है जो अनगिनत गिफ्ट नेचर आपको देती है. दैट इज नोन एज बाउंटीज. एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स रिफर्स टू एजुकेशन. तो इन बच्चों की दुनिया अंधकार, मतलब इट इज अंडर अ क्लाउडी स्काई. ग्रे है. ग्रे क्यों है? बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम नेचर, दे आर फार अवे फ्रॉम एजुकेशन. So till here, do you have any questions regarding the first or the second stanza? No, No, ma'am. ma'am. Okay. So now we come to the third stanza. The third stanza is about the effect of all these things in the classroom on the children. ये जो डोनेटेड चीजें क्लासरूम में पड़ी हैं, ये बच्चों को क्या करने पे मजबूर कर देती है? उनके अंदर क्या होता है? चीफ बनने की आदत बन जाती है उनको. यस, आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है नर्सरी के या एलकेजी के, उनको चोरी का मतलब पता होता है क्या है? नो मैम. वो क्लास में एक बच्चे को देखते हैं जिसके पास सपोज पेंसिल है सांता क्लॉज की, तो उसका क्या मन होगा? कि कि मेरे मेरे पास पास भी हो. और क्या पॉसिबल है जब वो दूसरा बच्चा ना देख रहा हो तो वो बच्चा क्या करेगा? उठा लेगा. उठा लेगा, है ना. उसको ये नहीं पता है कि वो चोरी कर रहा है, बट उसके अंदर एक टेम्पटेशन आया टू ओन दैट थिंग. यस यस, है ना. तो वैसे ही जब ये स्लम एरिया के बच्चे इन चीजों को देखते हैं, टायरोलीज वैली को देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, शेक्सपियर के प्लेस को देखते हैं, तो इनके मन में क्या आता होगा? टेम्पटेशन टू स्टील. एंटर द हार्ट. टेम्पटेशंस एंटर द हार्ट कि काश हम भी ऐसी दुनिया जिए, काश हम भी रिच लोगों की तरह एक भरपूर जिंदगी को एंजॉय करें. जब ये टेम्पटेशन आती है तो इनके पास पैसे तो है नहीं उसको पूरा करने के लिए. सो व्हाट डू दे डू? चोरी. यस, ऑब्वियसली. अब पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं, कमाने की क्षमता नहीं है, तो व्हाट अदर ऑप्शन इज लेफ्ट? टू स्टील. अब तक उनकी जिंदगी क्लाउडी थी, ग्रे थी, है कि नहीं? यस मैम. जिस मोमेंट पे उन्होंने चोरी किया, उस मोमेंट पे उनकी जिंदगी क्या हो जाएगी? From ब्लैक. gray it will turn into अंधकार में मतलब yes, अंधकार में घिर जाएगी. अब उम्मीद की कोई किरण नहीं बचेगी. Once they enter the world of crime, then there is no release from the dark world. Once you enter the world of crime, you cannot return to the normal world.
मैम उन्होंने स्टीलिंग करी तो नहीं थी, उन्होंने सिर्फ सोचा करने का। बेटा स्टीलिंग की तो बात कर ही नहीं रहा है, पोएट हमें बता रहे हैं कि क्या होता क्या है इन बच्चों के साथ। ओके ओके मैम। पोएट इज डिस्क्राइबिंग द चिल्ड्रन कि क्यों इनको जरूरत है टू लीड देम आउट टू नेचर। ही इज नॉट डिस्क्राइबिंग कि दिस इज व्हाट दे डू, ही इज जस्ट टेलिंग अस दैट व्हाट हैपेंस विद दीस चिल्ड्रन अल्टीमेटली। ठीक है। So this stanza, the third stanza, is about how all these things are wicked, are bad for the children. क्यों? क्योंकि उनके अंदर टेम्पटेशंस अराउज करती हैं, टेम्पटेशंस आते हैं तो वो स्टील करते हैं तो ऑलरेडी जो उनकी दुनिया क्लाउडी है वो घोर अंधकार में चली जाती है. इट टर्न्स इनटू एंडलेस नाइट. Surely Shakespeare is wicked. Do I need to explain this now? Why Shakespeare is wicked? No मैम. It is enticing them to a riches, to a world of nobility. वो दुनिया, वो रह सहन उनका काशी ऐसे. Therefore, this wicked. इन बच्चों को Shakespeare ना is nothing less than wicked, nothing less dullness. मैम Then आवाज he says the math and आवाज नहीं आ रही मैम. अब आवाज नहीं आ रही. रुको, मेरे को लगता है नेटवर्क गया. रुको एक मिनट. मैम आ रही है आवाज. अब आई है, पहले नहीं आ रही थी जब आपने बोला नेट. बीच में ब्रेक हो रही थी मैम. ओके बेटा, थोड़ी बहुत आई थिंक प्रॉब्लम्स हैं ही हैं. आई थिंक यू विल हैव टू एडजस्ट टू दिस. आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि बेस्ट हो, बट स्टिल आई मीन इट्स ऑल टेक्नोलॉजी, वी कैन नॉट चेंज इट. हाँ जी बोलो. मैम सही आ रही है अब. ओके बेटा. हाँ जी. So the poet says, surely Shakespeare is wicked, the map, a bad example, with ships and sun and love, tempt them to. वो सारी चीजें हैं. मैप में भी ये सारी चीजें इम्प्लाई होती हैं. ये सारी चीजें क्या करती हैं? दे टेम्प्ट very kind, you know, unknowingly their lives turned. For lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. किस तरफ इनकी जिंदगी बदल जाती है? From fog क्या imply करता है? अंधकार. ओ डिम 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 मतलब डर. Yes, it implies dimness. अभी धुंधला है, but एक किरण बाकी है. बट एक बार चोरी किया तो क्या होगा? वो एक किरण जो है, एक उम्मीद की किरण जो है, वो भी खत्म हो जाएगी. एंड इट विल टर्न इनटू एन एंडलेस नाइट, एंडलेस डार्कनेस. एंड स्लाइली क्या इम्प्लाई करता है? कनिंगली. That is the meaning, but what is meant over here by the term slyly? पता भी नहीं चलेगा. Yes, without anyone realizing. Their lives slyly turn in their cramped holes. Cramped holes किस चीज के लिए बोला गया है? देयर होम्स. Cramped का मतलब क्या है बेटे? Rat holes. Cramped means very very small areas, जहाँ पे चलने फिरने की भी जगह नहीं है. People can hardly live over there. They are almost bumping into each other when they are over there. Does it make for conducive living, for happy living? आपके घर में 5-6 लोग रहते होंगे. अगर मैं उसी घर में 50 लोगों को भर दूं, will you be happy about it? Not at all. है ना? You will find that you are unable to breathe. You are unable to have a single moment to yourself. कुछ देर के लिए
हम बर्दाश्त कर लेते हैं, बट इफ इट गोज ऑन डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट, तो इट बिकम्स अ टेरिबल सिचुएशन. बट ये बच्चे ऐसी ही दुनिया में रह रहे हैं where their homes are cramped, right? समझ में आ गया ये लाइन का मतलब? Yes, ma'am. Okay. After this, the poet says, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stone. पहले तो slag heap का मतलब बताओ. What is the meaning of slag heap? कचरे का ढेर. बेटा, कचरे का ढेर. अब वेल्स एक माइनिंग टाउन था, तो वहां पे कचरा किस चीज का होगा? आयरन. आयरन का नहीं है बेटे. आयरन ओर में से जब आयरन को एक्सट्रैक्ट कर जाता है, जो उसका बचा हुआ रेसिड्यू होता है, जो बाकी बचा हुआ कचरा होता है, दैट इज नोन एज स्लैग. और हीप का मतलब होता है ढेरियां. तो वो बचे हुए कचरों की ढेरियों पे ये बच्चे रहते हैं. और इनके ऊपर जब बच्चे नजर आते हैं तो ये कैसे हैं? इनकी जो स्किन्स हैं, पीप थ्रू बाय बोन्स. इसका मतलब बोन्स भी दिखती हैं. ये इतने पतले हैं, इतने सूखे मरियल है कि हड्डियों में, मतलब इनकी स्किन में से हम हड्डियों को काउंट कर सकते हैं. ईच एंड एवरी बोन इज विजिबल व्हेन वी लुक एट दीज चिल्ड्रन हु आर लिविंग ऑन दीज स्लैग हीप्स, राइट? और इन बच्चों ने अगर स्पेक्टिकल्स पहनी भी हैं, इनके चश्मे, इन्होंने चश्मे पहने हुए हैं, तो वो चश्मों के जो ग्लासेस हैं वो कैसे हैं? टूटे हुए. Cracked. टूटे Mended. हुए. बेटे, all of us wear glasses. Maybe we wear spectacles or we wear sunglasses. Yes or no? Yes. अगर हमारे ग्लासेस टूटे हुए होंगे या गंदे होंगे, तो हमें दुनिया कैसे नजर आती है? ब्लर. धुंधली. अनक्लियर. अनक्लियर. तो बच्चों के लिए उनकी दुनिया कैसे है वो मेंडेड ग्लास से? इज इट ब्राइट और इज इट एन अनक्लियर फॉगी वर्ल्ड? Unclear for. फॉगी वर्ड. डू यू रियलाइज द ब्रिलियंस ऑफ द पोएट? उसने कैसे एक एक इमेज को उठाया है टू शो द डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ द वर्ल्ड दैट दिस चिल्ड्रन हैव. Yes, ma'am. Yes. है ना? मेंडेड ग्लास से उनको क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ द वर्ल्ड है, टूटा फूटा व्यू ऑफ द वर्ल्ड है. और फिर उसने बोला है लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन. विच लिटरेरी डिवाइस? सिमिली. Yes, he is comparing the mended glass to bits of stone कि टूटे हुए हैं, छोटे छोटे कण में टूटे हुए हैं. And then he further says all of the time and space are foggy slum. What is the meaning of this line? All of the time and space are foggy slum. इस लाइन का मतलब क्या है बेटा जी? Mostly the space of slum is foggy most of the Yes, time. yes. पूरा इन बच्चों का समय और पूरे का पूरा एरिया जहाँ पे ये वो रहते हैं, वो फॉग से भरा हुआ है, क्लाउड से भरा हुआ है, डिम लाइट से भरा हुआ है. दे हैव नो फ्रेश एयर टू ब्रीथ. दे हैव नो ब्राइट लाइट टू ब्राइटन देयर वर्ल्ड. अंधकार में रहते हैं, अंधकार में जीते हैं, और अंधकार में ही शायद ये मर जाएंगे. So that is the line with which the poet ends with, why, what is wrong with the world of the children. From this line onwards we start with this plea. उसकी प्ली दुनिया से, जो लोग अथॉरिटी में हैं उनसे वो क्या प्ली कर रहा है, दैट इज द फोर्थ स्टैंजा. The last line of the third stanza and the fourth stanza starts with this plea. So blot their maps with slums as big as doom. As big as doom, which literary device? Simile. Yes, it's a simile. वो बोल रहा है कि slums जो हैं वो इतने बड़े हैं जितना doom होता है. What is the meaning of doom? Death. Death, बर्बादी. बर्बादी छोटी होती है कि बहुत बड़ी होती है, इंसान को तबाह कर देती है? तबाह. बहुत बड़ी.
तो उसका क्या है? जो उनके मैप्स हैं, जो इन बच्चों के मैप्स हैं, उनके ऊपर से क्या ब्लॉट करना है? ब्लॉट का मतलब रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? मैम ब्लॉट का slums, मच हाँ जी बेटा। मैम ब्लॉट का मतलब क्या? बेटा इट इज रिमूव। बेटे पुराने जमाने में इफ यू रिमेम्बर क्विल्स वर यूज्ड फॉर राइटिंग, याद है आपको? उसके बाद फाउंटेन पेन्स आए थे। तो ये क्विल्स और फाउंटेन पेन्स क्या करते थे? दे वुड लीव डैब्स ऑफ इंक, मोटी मोटी इंक छोड़ देते थे, जिसके कारण बुक क्या होती थी जब आप लिख रहे होते थे? पूरा वो इंक फैल जाता था। अगर आप गीली लिखाई को हाथ लगाओगे तो क्या होगा? वो स्मज्ड हो जाएगी ना। यस मैम। तो ये जो ब्लॉटिंग पेपर होता था, जैसे न्यूज़पेपर आपका ब्लॉटिंग पेपर है, अदरवाइज इफ यू गो टू द स्टेशनरी शॉप यू आल्सो गेट अ ब्लॉटिंग पेपर। ये चॉक इज अ वेरी गुड ब्लॉटर। इन चीजों से क्या होता था? जो एक्स्ट्रा इंक होता था वो रिमूव हो जाता था। समझ रहे हो? यस मैम। तो अब मैप के ऊपर जो ड्राइंग्स है, जो स्लम बनाया है, वो भी इंक से है। तो बेटा जरूर तो दिया करो। यस और नो बेटा जी। मैप्स के जो मैप्स हैं उन पे जो ड्राइंग बनाई हुई है, इज इट मेड विद इंक और नॉट? यस। यस मैम। तो वो बोल रहे हैं कि ये इंक को ब्लॉट कर दो, रिमूव कर दो। और कौन से इंक को रिमूव करना है? जो स्लम्स को डिपिक्ट करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट के फेस ऑफ द वर्ल्ड से, दुनिया में से ये स्लम्स को रिमूव कर देना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड द प्ली ऑफ द पोएट? यस मैम। Yes, ma'am. Now, is he talking about, is he talking about eradicating the poor people or eradicating poverty? Eradicating poverty. Yes. Please ये मत सोचना कि वो एडोल्फ हिटलर की तरह बोल रहे हैं हम एक्सटर्मिनेट कर दें, ऐसा वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि स्लम एरिया को खत्म करो, इन बच्चों को बाहर निकालो, इनको नेचर की तरफ लेकर जाओ, इनको फ्रीडम की तरफ लेकर जाओ, इनको एजुकेशन की तरफ लेकर जाओ। इनका भी हक है ऐसी दुनिया पे। Clear? That is the plea of the poet in the last stanza. So blot their maps with slum as big as doom. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes a window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Unless governor, inspector and visitors. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आप और मैं इन बच्चों की दुनिया मतलब बेटर कर सकते हैं? हम चाहे भी तो क्या हम इन बच्चों की दुनिया बेटर कर सकते हैं? नहीं, बस थोड़ा No, सा ma'am. है, जरा सा। हम इनको किसी एक आधे बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, बाकी पूरी की पूरी तरह से हम ये स्लम एरियाज को इरेडिकेट नहीं कर सकते। तो ये स्लम एरियाज को इरेडिकेट कौन कर सकता है? किस में इतनी क्षमता है? Government officials. Yes, Government. the people in authority, the governor, the inspector, and the visitors. They are the people in authority, the people with the strength to change the world of these children. तो बोल रहा है जब तक ये ना कुछ करें तब तक क्या होगा? This map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. अगर हम चाहते हैं कि ये मैप इन बच्चों का दुनिया बने, तो हमारे को गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? ये जो इनके स्लम एरिया का विंडो है, ये इनकी जिंदगी को शट कर देगा लाइक कैटाकोम्स। व्हाट आर कैटाकोम्स? वो जो टनल होती है जिसमें मैम डेड पीपल को मतलब। Yes, it's a graveyard. It's a graveyard in Paris. It is filled with skulls, right? It's a very terrible place, a very dark, terrible, dingy place.
तो बोलते हैं बच्चों के लिए दुनिया जो है वो भी एक कैटाकोम्ब से कम नहीं है. इट्स अ प्लेस विदाउट अपॉर्चुनिटी, इट्स अ प्लेस विदाउट होप, इट्स अ क्रैम्प्ड प्लेस. बंद दुनिया है, अंधकार भरी दुनिया है. तो बोलता है कि ये विंडोज इनकी जिंदगियों को कैटाकोम्ब्स की तरह बंद कर देती हैं. कैटाकोम्ब्स इज अ इज अ क्लोज्ड एनक्लोज्ड कन्फाइंड स्पेस, अंधकार से भरी हुई है. तो ये जो विंडोज हैं ये भी इन बच्चों की दुनिया को इन्हीं चीजों में बंद कर देती है. फिर वो बोलता है ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स. ब्रेक ओपन किस चीज को तोड़ने की बात कर रहा है? विंडोज. विंडोज को, कि उन दीवारों को, उन विंडोज को, वो हर इमारत को जो इन बच्चों को एनक्लोज करके रखी हुई है. All those structures he's asking them to break down which are enclosing the lives of these children. ठीक है. ब्रेक को ब्रेक ओपन, तोड़ दो, तोड़ तोड़ के इनको बच्चों के लिए जिंदगी को खोल दो. टिल दे ब्रेक द टाउन. दे ओवर हियर कौन है? चिल्ड्रन. नो, बच्चे तोड़ेंगे दुनिया की दीवारों को, ये स्लम एरिया की दीवारों को. मैम समझ ही नहीं आया ये लाइन हमें ब्रेक से. ओके बेटा, ये पोएट का प्ली चल रहा है, वो क्या चाहता है कि करो? कि इरेडिकेट पॉवर्टी. चेहक आपको है? कैन यू हियर मी? यस मैम. बेटे ये वाले स्टैंजा में पोएट की प्ली चल रही है, वो दुनिया से क्या मिन्नतें. मैम आवाज रुक गई फिर से आपकी. रुको एक मिनट. अभी आ गया. हाँ जी बेटा, ये वाले स्टैंजा में पोएट दुनिया से प्ली कर रहा है कि इन बच्चों की दीवारों को तोड़ दो. यस मैम. तो ब्रेक ओपन सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ना है कि दीवारों को तोड़ना है जिन्होंने इनको इनक्लोज किया हुआ है? दीवारों को तोड़ना जिन्होंने इनको इनक्लोज किया. राइट. वो बोल रहा है कि इनको तोड़ना शुरू करो टिल दे फाइनली ब्रेक द टाउन. स्लम एरिया में जितनी भी दीवारें हैं वो पूरी की पूरी टाउन को एनकम्पास कर रही हैं, पूरी टाउन में फैली हुई है. पूरे टाउन को आजाद करो इस गरीबी से. क्लियर? यस मैम. बट ये दे कौन है? दीवारें तोड़ेगा कौन? आप, मैं, बच्चे? अथॉरिटी वाले मतलब जिनके पास है. Yes, they over here implies the people in authority, the governor, the inspectors, and the visitors. They have the strength, the authority to break the walls of the slum area. अब ये दीवारें तोड़ के बस इनको वहीं छोड़ देना है. That is the end, के दीवारें तोड़नी है. दीवारें तोड़ने तक उनका काम है कि आगे भी उनको कुछ करना है? नहीं मैम. एंड शो देम मतलब उनको वर्ल्ड दिखाना आगे का. यस, सिर्फ दीवारें तोड़ना काम नहीं है, आगे का काम भी बाकी है. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक द वर्ल्ड रन azure on gold sands and let their tongues run naked into books. And show the children to green fields मतलब बेटे अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि बच्चों को क्या दुनिया दिखानी है हमने. नेचर. यस, ग्रीन फील्ड्स, खुले आसमान में, अ ब्राइट स्काई. खेतों के बीच, खेतों को, फील्ड्स को उनको एंजॉय करने दो. लेट देम एंजॉय द बाउंटीज ऑफ नेचर एंड शो टू ग्रीन फील्ड एंड मेक द वर्ल्ड रन azure on gold sands. इस लाइन का मतलब है बीचेस. azure is the blue sky, gold sand is the sand of the beach. बोलते हैं इनको फ्रीडम दो to run freely on the golden sands of the beach. Can you visualize the scene? The children running around in the green fields, the children playing around on the golden sands under a blue sky and blue water. आपको दिख रहा है वो इमेज अपने दिमाग में? Yes, ma'am. Right. And finally he says,
and let their tongues run naked into books. इसका मतलब है कि give them ample of opportunity to read good books. अच्छी किताबें पढ़ने को इनकी अपॉर्चुनिटी दो. क्या ये बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है of reading good books? Obviously the answer is no. So he wants he wants basically two things: to allow the children to enjoy the bounties of nature and to be given a good education. Clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. And further he says, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. ग्रीन लीव्स तो हमें समझ में आता है, पौधों की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं. What is implied by white leaves? Books. Yes, the pages of the books are known as leaves, and white leaves implies the pages of the books, the white pages of the books. तो वो बोल रहा है कि उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए टू एंजॉय नेचर एंड टू सैम्पल द डिलाइट्स ऑफ गुड एजुकेशन. जो लास्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है. हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun. What do you mean by history? आपकी और मेरी हिस्ट्री होगी शायद, मतलब हमारी तो चांस कम है, but you people have the chance of writing your own history. What is implied by history? Something remarkable or something unremarkable? Remarkable. Remarkable. अब जिस हालत में बच्चे हैं स्लम एरिया के, are there many chances of they doing remarkable things in their lives? No, ma'am. आपको समझ में आ गया हिस्ट्री क्या इम्प्लाई करता है? डूइंग रिमार्केबल थिंग्स. ठीक है. Yes, ma'am. नाउ लेट अस लुक which is the sun. What is meant by the language of the sun? What is meant by the sun? Language Sun. of nature. ओके, बट अगर हम सन के बारे में बात करें तो क्या सन पार्शियल है बिटवीन द रिच No, एंड द ma'am. पुअर? सन बोलता No, है ma'am. कि मैं इन्हीं को अपनी वार्मथ दूंगा, इन्हीं को लाइट दूंगा, बाकी सबको नहीं दूंगा. नहीं मैम. वो इक्वल है. Yes, Yes. ma'am. सन की लैंग्वेज अगर हम बात करने जाए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिगरेटिवली. सन क्या इम्प्लाई करता है? फ्रीडम एंड इक्वालिटी टू Equality ऑल. and freedom. यस. अब इस लाइन का मतलब, अब ये दोनों बातों को लिंक करो. हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun. Who can write their history? Who can write their history? कोई जिसके पास डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग है या थोड़ी अथॉरिटी है. चाहे अगर हम पोएम के साथ लिंक करें और हम सन के साथ लिंक करें तो हिस्ट्री लिखने की क्षमता किसकी है? Government authority. गवर्नमेंट अथॉरिटीज तो अपनी हिस्ट्री लिख ही रहे हैं बेटा. हम चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं? किसके पास? Slum children. हाँ, क्या वो आज तक अपनी हिस्ट्री लिख पाए हैं? No, ma'am. बट अगर हम उनको फ्रीडम देते हैं, अगर हम उनको इक्वालिटी देते हैं, will they get an opportunity to write their own history, to do something of their lives, to achieve something in their lives? Yes. History theirs whose language is the sun. आपको समझ में आ रहा है? Yes. लाइफ बनाने की अपॉर्चुनिटी उसी को मिलेगी जिसको सन की तरह फ्रीडम मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी. अगर हम इन बच्चों को नहीं देंगे, इक्वालिटी नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय नेचर एंड टू रीड और टू रिसीव गुड एजुकेशन नहीं देंगे, तो ये बच्चे भी अंधकार की दुनिया में जिएंगे और अंधकार की दुनिया में मर जाएंगे. इनको हिस्ट्री लिखनी है, इनको एक नया रुख देना है, तो इनको हमें फ्रीडम इक्वालिटी देनी पड़ेगी. फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर द लैंग्वेज ऑफ द सन. Is this poem clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you have any questions? मैम इससे नहीं है मैम, लॉस्ट स्प्रिंग से है क्वेश्चन.
चहक मैम एक जाओगे बार ना फिर से बताना, शेक्सपियर जो हेड था उनका, वो क्या सिग्निफाई करता है? बेटा इट्स एरुडिशन, ERUDITION। एरुडिशन का मतलब होता है नोब्लीस सोसाइटी, NOBLESE। नोब्लीस सोसाइटी का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ द रिच एरिस्टोक्रेटिक पीपल, द वर्ल्ड ऑफ द किंग्स एंड द नोबल्स। जो इंग्लैंड के राजा थे, जो ग्रीस के राजा थे, इंग्लैंड उस टाइम पे इट वाज रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना? तो ग्रीस और ये सब इंग्लैंड, मतलब इट वेरी क्लोजली लिंक्ड विद इंग्लैंड थे। तो शेक्सपियर की जो कहानियां हैं वो इन्हीं सारे लोगों पे है। ठीक है? यस मैम। हाँ जी बेटा जी, एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन? मैम शेक्सपियर इज विक्ड का मतलब बता दो। शेक्सपियर इज विकेड। बेटा शेक्सपियर के प्लेस में एक रिच दुनिया डिपिक्टेड है। यस मैम। जब ये रिच दुनिया बच्चे देखते हैं तो उनमें डिससैटिस्फैक्शन आता है अपनी दुनिया को लेके। यस मैम। क्या वो भी एक रिच लाइफ जीना चाहते हैं? यस। जब रिच लाइफ जीना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है लाइफ जीने के लिए, तो वो क्या करने पे मजबूर हो जाते हैं? स्टील करने पे। तो क्या शेक्सपियर काइंड था या शेक्सपियर विकेट बन गया उन बच्चों के लिए? विकेट। समझ में आ रहा है? व्हाई डिड शेक्सपियर बिकम विकेट फॉर दीस चिल्ड्रन? यस मैम। क्योंकि उसने इनको नॉलेज नहीं दिया, उनको प्लेजर नहीं दिया, बल्कि उनकी जिंदगी को अंधकार में डाल दिया। बिकॉज दे वर फोर्स्ड टू स्टील, दे वर टेम्प्टेड टू स्टील। इसलिए शेक्सपियर को विकेट बोला जा रहा है और मैप को बैड एग्जाम्पल बोला जा रहा है। हाँ जी बेटा जी, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, with this class I am actually not feeling very well, so if you have any queries you can DM me in the group and I'll respond to it as and when I feel better. So you can all leave beta ji, I'm ending the meeting. Thank you, ma'am. Thank थैंक you. यू Thank you, मैम। ma'am. Thank you. Okay beta ji, okay beta ji.